Hello students, good morning. Welcome to SI Sonic classes. Students, we were reading chapter 4, The River Bank of our English literature book as disaster. In our last video, our topics were summary of 4 to 9 stanzas of this chapter 4, The River Bank, and our next topic was exercise A, match the columns A and B correctly to complete the sentences, which know page number 33 of this chapter 4, The River Bank. So students, we have read and explained summary of 4 to 9 stanzas of this chapter 4, and we have also solved this exercise A, match the columns A and B correctly to complete the sentences of this chapter 4 in our English literature book as disaster in our last video. So we have completed this exercise A and this summary of this chapter 4 in our last video. And since today's our topic is word meaning of this chapter for the river bank. So all students pay special attention in the class and listen to my words clearly, because today we are going to read and write down word meaning of this chapter for the river bank in our Fair English literature notebook. Okay, so let's see word meaning of this chapter 4. Chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is the river bank. Okay, the river it's mean होते नदी and bank means किनारा. The river bank it's mean नदी का किनारे. It's the name of this chapter 4. Okay, and students let's see word meaning. Word it's mean होते शब्द and meaning means अर्थ. Word meaning it means शब्द अर्थ. Let's see first number word. Your first number word is splashes. S-P-L-A-S-H-E-S. Splashes. Okay, here the meaning of splashes that bouchar या छिड़काव. Okay, and the meaning of splashes is drops of any liquid. Okay, drops it's mean बूंदे, of means की, any means किसी, liquid means तरल. Okay, जैसे oil हो गया, milk हो गया, water हो गया. Okay, ये हमारी liquid things होती है ना, तो drops of any liquid it's mean हो गया किसी भी तरल की बूंदे. Okay, इससे बोलते हैं हम लोग स्प्लैश है. इट्स मीन होते हैं बौछार या छिड़काव. क्लियर. लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड. योर सेकंड नंबर वर्ड इज पेनिट्रेटिंग. P-E-N-E-T-R-A-T-I-N-G. हियर द मीन ऑफ पेनिट्रेटिंग दैट भेदने वाला. एंड द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग इज कमिंग थ्रू. सी और माइंड की कमिंग THROU जस्ट हो. इट्स मीन कमिंग थ्रू. इट्स मीन होता है के माध्यम से आ रहा है. कमिंग मीन्स आ रहा है, थ्रू मीन्स माध्यम से. ओके, कमिंग थ्रू इट्स मीन के माध्यम से आ रहा है. लेट्स सी थर्ड नंबर वर्ड. योर थर्ड नंबर वर्ड इज स्टीप. S-T-E-E-P. स्टीप. हियर द मीनिंग ऑफ स्टीप दैट खड़ी ढाल या सीधी ढाल. ओके, and here the meaning of steel is that rising or falling sharply slope. Okay, rising or falling. Rising it mean होता है कि बढ़ना, और मीन्स अथवा falling मीन्स होता है गिरना या गिरते हुए. ओके, या नीचे की ओर आना. एंड स्लोप. हियर द मीन ऑफ स्लोप SLOPE. स्लोप मीन्स होता है ढलान. राइजिंग और फॉलिंग शार्पली स्लोप इट्स मीन होता है तेजी से बढ़ना या गिरना. ओके, स्लोप मीन्स होता है ढलान. इट्स मीन तेजी से बढ़ती हुई या गिरती हुई. बहुत ही शार्प. ओके, बहुत ही शार्पली, बहुत ही तीखेपन से शार्पली, बहुत ही राइजिंग करना या फॉलिंग करना. इट्स मीन तेजी से बढ़ना या गिरना. ओके, स्लोप मीन्स ढलान. इससे बोलते हैं स्टीप. Your फोर नंबर वर्ड इज स्क्रैप्ड. SCRAPED. स्क्रैप्ड. हियर द मीनिंग ऑफ स्क्रैप्ड दैट खुरचना या छीलना. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रैप्ड इज क्लीन बाय रबिंग विथ समथिंग शार्प. ओके, क्लीन मीन्स साफ किया हुआ, बाय मीन्स द्वारा, रबिंग. ओके, इट्स मीन रब करके, इट्स मीन रगड़ के. ओके, विथ समथिंग मीन्स किसी चीज़ से. शार्प मीन्स होता है स्टूडेंट. हियर द मीनिंग ऑफ शार्प दैट नुकीली. ओके, तो क्लीन बाय रबिंग विद समथिंग शार्प इट्स मीन किसी नुकीली चीज़ से रगड़ कर साफ किया हुआ, उसे बोलते हैं स्क्रैप्ड. ओके, इट्स मीन खुरचना या छीलना. योर फाइव नंबर वर्ड इज स्क्रैबल्ड. SCRABBLED. स्क्रैबल्ड. एंड हियर द मीनिंग ऑफ स्क्रैबल. स्क्रैबल्ड मीन्स स्टूडेंट होता है कुतरना या खरोचना. ओके, इट्स मीन स्क्रैबल्ड मीन्स बोल सकते हैं निबिल्ड, बोल सकते कुतरना या खरोचना. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रैबल्ड इज move the hands and the feet about quickly. Okay, it's mean quickly means तेजी से. hands means हाथों को, feet means पैरों को. okay, move means हिलाना. तो तेजी से हाथ पैर हिलाए. it's mean होता है, इससे बोलते हैं scrabble. it's mean तेजी से हाथ पैर हिलाना. okay, let's see six number word. your six number word is trotted. 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 here the meaning of trotted that छोटे कदम. okay, छोटे कदम रख कर दौड़ना, उसे बोलते हैं trotted. okay, and the meaning of trotted is moved with fast bouncy steps. bouncy means होता है उछलना. ओके, उछाल. तो मूव्ड विथ फास्ट बाउंसी स्टेप्स इट्स मीन हो गया तेजी से उछाल वाले कदमों. ओके, स्टेप्स मीन्स होता है कदम. तेजी से उछाल वाले कदमों. ओके, तेजी से उछाल वाले कदमों को हम लोग बोलते हैं ट्रोटेड. ओके,
Let's see 7 number word. Your 7 number word is fascinated. 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 And here the meaning of fascinated is mohit ya mugdh. Okay. And fascinated the meaning of fascinated is charmed. charmed. Charm means होता है मंत्रमुग्ध या प्रश्न कर देने वाला. Clear? Let's see 8 number word. 8 number word is caught his eye. Okay. Here the meaning of caught his eye means होता है नजर पड़ना. Okay. And the meaning of caught his eye is got his attention. It's mean होता है उसका ध्यान गया. Okay. Attention mean ध्यान. तो got his attention it's mean उसका ध्यान गया. Your 9 number word is in the heart of. It's mean होता है कि दिल में. The meaning of in the heart of is at the center of. It's mean कि केंद्र में. Okay. Center means at the केंद्र of. At the center of. It's mean कि केंद्र में. Your 10 number word is made fast. Okay. मेड फास्ट MEDE मेड FAST फास्ट. मेड फास्ट मीन्स होता है तेजी से बनाया. ओके तेजी से बनाना. एंड मीनिंग ऑफ मेड फास्ट इज मूव्ड क्विकली. इट्स मीन हो गया जल्दी चले गए. ओके क्विकली मीन्स जल्दी से. मूव्ड क्विकली इट्स मीन जल्दी से चले गए. ओके एंड लेट्स सी 11 नंबर वर्ड. योर 11 नंबर वर्ड इज जिंजरली. GINGERLY जिंजरली. एंड जिंजरली मीन्स स्टूडेंट्स होता है वॉचफुल. ओके ध्यानपूर्वक या एहतियाती. ओके एंड द मीनिंग ऑफ जिंजरली इज केयरफुली. इट्स मीन सावधानी से. ओके CAREFULLY carefully. It means सावधानी से. Okay. Your 12 number word is stern. STERN stern. And here the meaning of stern is कठोर या दृढ़. Okay. And the meaning of stern is the back part of a ship. Okay. The back part it's mean पीछे का भाग. Of means का means एक ship. SHIP ship means जहाज. The back part of a ship it's mean एक जहाज का पीछे के भाग को बोलते हैं हम लोग stern. STERN. Okay. And your 13 number word is घेरकिन्स. GHERKINS घेरकिन्स. And घेरकिन्स means students होता है कि cucumber खीरा. Okay. And here the meaning of घेरकिन्स that small cucumbers that have been preserved in vinegar before being eaten. Okay. Small cucumber it means छोटे खीरे. Okay. That means जिन्हें have been preserved. Okay. Preserve it means जिन्हें संरक्षित किया हो. PRESERVED. Preserved means होता है संरक्षित किया गया. Okay. इन विनेगर. विनेगर मीन्स छिड़के में. ओके सिरका जिसे बोलते हैं. ओके विनेगर मीन्स सिरका. VINEGAR. बिफोर मीन्स पहले. बीइंग ईटिंग मीन्स खाने के. ओके स्मॉल कुकुम्बर दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन विनेगर बिफोर बीइंग ईटन. ओके इट्स मीन छोटे खीरे जिन्हें खाने से पहले सिरके में संरक्षित किया गया. ओके प्रिजर्व्ड मीन्स होता है संरक्षित करना. विनेगर मीन्स सिरका. तो छोटे खीरे जिन्हें खाने से पहले विनेगर में प्रिजर्व किया गया हो इट्स मीन सिरके में संरक्षित किया गया उसे बोलते हैं हम लोग घेरकिन्स. GHERKINS घेरकिन्स. ओके लेट्स सी 40 नंबर वर्ड. 40 number word is cress. CRESS cress. Okay and here the meaning of cress that सरसों का पौधा बोल सकते हैं. and the meaning of cress is edible plants with leaves comma often used for salads. Okay edible means होता है खाने योग्य. okay या खाद्य पदार्थ. plants means पौधे. with leaves means पत्तियों के साथ. often means प्राय या अक्सर. used means प्रयोग किया जाता है. for means के लिए. salad means होता है सलाद. okay तो edible plants with leaves often used for salads. इट्स मीन पत्तियों वाले खाद्य पदार्थ अक्सर सलाद के लिए प्रयोग किए जाते. ओके या आप बोल सकते हैं कि पत्तियों वाले खाने योग्य पौधे जिसे सलाद के लिए प्रयोग किया जाता है. ओके कि इट्स मीन बोल सकते हैं edible plants with leaves often used for salad. ओके सलाद के लिए प्रयोग किया जाने वाला. ओके अक्सर सलाद के लिए प्रयोग किया जाने वाला पत्तियों के साथ खाने वाला पौधा. खाने योग्य पौधा उसे बोलते हैं क्रेस. ओके CRESS. और 50 नंबर वर्ड इज वीजल्स. WEASCLS. ओके वीजल्स. हियर द मीनिंग ऑफ वीजल्स है न्यूवला होता है. ओके न्यूवला. एंड द मीनिंग ऑफ वीजल्स इज स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स विथ रेडियस ब्राउन फर. ओके स्मॉल मीन्स छोटा. वाइल्ड मीन्स जंगली. एनिमल मीन्स जानवर. विथ मीन्स साथ में. रेडियस मीन्स रेड लाल. ओके ब्राउन मीन्स भूरा. फर हियर द मीनिंग ऑफ फर दैट रोई होता है. ओके स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स विथ रेडियस ब्राउन फर. इट्स मीन लाल भूरे रंग के फर के साथ लाल भूरे रंग के रोई वाले छोटे जंगली जानवर को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स वीजल्स. ओके लाल भूरे रंग के रोई वाले छोटे जानवर. ओके स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स विथ रेडियस ब्राउन फर. इट्स मीन लाल भूरे फर वाले. ओके लाल भूरे रोई वाले छोटे जंगली जानवर. ओके लेट्स सी 16 नंबर वर्ड विच इज लास्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. ओके and your 16 number word is stoats. STOATS stoats. Okay and here the meaning of stoats is एक प्रकार का जीव होता है. okay and the meaning of stoats is small wild animals with a long body and brown fur. okay small means छोटा. wild means जंगली. animal means जानवर. with means साथ में. a long body it means एक लंबी शरीर के साथ में. okay and means of brown fur. brown means भूरे. fur means रोई. okay fur means रोई. small wild animals with a long body and brown fur. it means
लंबे शरीर और भूरे रंग के फर वाले, भूरे रंग के रोए वाले छोटे जंगली जानवर। ओके, लंबे शरीर और भूरे रंग के रोए वाले, भूरे रंग के फर वाले छोटे जंगली जानवर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं, STOAT, स्टोर्स। ओके, तो स्टूडेंट आई डिस्क्राइब यू ऑल दीज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर फॉर द रिवर बैंक, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all these word meaning of this chapter 4. You have no problem in any meaning of the given words. clear? तो students, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड मीनिंग अंडरस्टूड ही होंगे, समझ में आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी वर्ड की मीनिंग में, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर 4. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन दिस वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर 4 द रिवर बैंक in your fair English literature notebook with your best handwriting. It's a today's class work, and so your homework is that learn these word meaning of chapter 4 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपका क्लास वर्क है कि आपको वर्ड मीनिंग एज इट इज़ राइट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर के नोटबुक पे. फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग मेंशन करना है, वर्ड मीनिंग, एंड राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग विथ योर बेस्ट हैंड राइटिंग, एंड आफ्टर इट डू नंबरिंग एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग विद यूज़ ऑफ स्केल. ओके, तो स्केल का यूज़ करके आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है वर्ड एंड मीनिंग के बीच में, और नंबरिंग भी करनी है. ओके, तो ये आपका क्लास वर्क है कि आपको राइट डाउन करनी वर्ड मीनिंग को, और आपका होमवर्क है कि आई गिव यू ओनली एंड ओनली 16 वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर 4 फॉर लर्निंग इन योर 2 days क्लास होमवर्क. ओके, आज के होमवर्क में मैं आपको सिर्फ ओनली 16 वर्ड मीनिंग है, एंड I hope that you have no problem for learning these word meaning because I have explained all meaning of these word of chapter 4. Okay, मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ड मीनिंग को लर्न करने के लिए, बिकॉज मैं आपको सारी वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, तो आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर के नोटबुक से. आज आपका होमवर्क है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन दीज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर फॉर द रिवर बैंक इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक, एंड सेंड मी योर वर्क हियर. थैंक यू.